دنوں جنگل میں برسات کا موسم تھا، تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ رانو چڑیا اپنے بچوں کو لے کر اپنے گھونسلے میں بیٹھی دعا کر رہی تھی۔ اے اوپر والے، دیا کر ہم سب پکشیوں کی رکشا کرنا۔ مما، آپ یہ کس سے بات کر رہی ہیں؟ بیٹا، میں دعا مانگ رہی ہوں۔ جب بھی کوئی مشکل آئے تو ہمیں ایشور سے دعا مانگنی چاہیے۔ وہ ہر سمے ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہماری دعائیں سنتا ہے۔ یہ سن کر کوکو اپنے چاروں طرف دیکھتا ہے۔ مما، کہاں ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ بیٹا، وہ ہر جگہ موجود ہے مگر ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ پھر کوکو اپنی بہن گڑیا سے کہتا ہے، گڑیا بہن، چلو ہم بھی ایشور سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پاپا جلد گھر آ جائیں۔ ہاں بھائی۔ پھر وہ دونوں بہن بھائی دعا کرتے ہیں اور کچھ ہی دیر بعد ان کے پاپا گھر آ جاتے ہیں۔ پاپا آ گئے، ہماری دعا قبول ہو گئی۔ آج آپ نے اتنی دیر کر دی آنے میں، کہاں رہ گئے تھے؟ موسم تو آپ دیکھ ہی رہی ہو، بڑی مشکل سے یہ کچھ پھل ملے ہیں، انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہی دیر ہو گئی۔ چلو بچوں، اب آپ بھوجن کھا لو۔ ابھی رانو نے اتنا ہی کہا تھا کہ ان کا گھر زور سے ہلتا ہے۔ وہ سارا پریوار ڈر جاتا ہے۔ بہت تیز ہوا ہے آج۔ ان کے گھونسلے کی چھت پر ایک بہت بڑا سانپ آ گرا تھا، جس کی وجہ سے ان کا گھر اتنا زیادہ ہل رہا تھا۔ کبوتر کا گھر چڑیا کے گھر کے سامنے ہی تھا۔ وہ اپنے گھر کی کھڑکی سے سانپ کو دیکھ لیتا ہے، لیکن باہر موسم خراب ہونے کی وجہ سے وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ گڑیا بہن، چلو جلدی سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے گھر کو کچھ نہ ہو۔ پھر وہ دونوں معصوم بچے پھر سے دعا مانگنے لگتے ہیں۔ زیادہ ہلنے کے کارن ان کا گھونسلہ پیڑ سے نیچے گر جاتا ہے۔ رانو جلدی سے اپنے بچوں کو دیکھتی ہے۔ رانو کے سر پر چوٹ آتی ہے مگر اسے اپنے بچوں کی فکر میں اپنی چوٹ بھول جاتی ہے۔ گڑیا، کوکو، کہیں زیادہ چوٹ تو نہیں آئی آپ کو؟ نہیں مما، آپ کے سر سے خون نکل رہا ہے۔ ایسا کہتے ہوئے گڑیا رونے لگتی ہے۔ میری بچی پریشان نہ ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پاپا، آپ ٹھیک ہیں نا؟ ہاں، میں ٹھیک ہوں۔ پاپا، آپ جلدی سے ڈاکٹر بلبل کو لے آئیں، مما کے سر سے بہت خون بہہ رہا ہے۔ اچھا، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ پھر پاپا چڑیا بلبل ڈاکٹر کو لینے چلا جاتا ہے۔ مما، آپ نے تو کہا تھا کہ اوپر والا سب کی سنتا ہے، پھر ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی؟ گڑیا بیٹا، جو ہوتا ہے سب اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ ہمیں ہر حال میں ایشور کا شکر ادا کرنا چاہیے اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ مما، یہ صبر کیا ہوتا ہے؟ بیٹا، جب کوئی مشکل سمے آئے تو اپنے منہ سے کوئی بھی غلط بات نہیں نکالنی چاہیے جس سے ایشور ناراض ہو۔ مما، میں سمجھی نہیں، کیسی باتیں؟ جیسے کہ یہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ کیوں ہمارا گھر گرا؟ ایشور کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بیٹا، اس طرح کبھی نہیں کہنا چاہیے، اس سے ایشور ناراض ہو جاتا ہے۔ اچھا مما، ہم ہمیشہ صبر سے کام لیں گے، ہے نا کوکو بھائی؟ ہاں ہاں بالکل۔ مما، آپ کو زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ نہیں بیٹا، بس تھوڑا تھوڑا ہے۔ پھر وہاں کبوتر آتا ہے۔ چڑیا بہن، شکر ہے اوپر والے کا کہ آپ سرکشت ہو۔ ذرا اپنے گھر کے نیچے تو دیکھو، کتنا بڑا سانپ ہے۔ یہ سانپ آپ کو کھانے ہی والا تھا کہ آپ کا گھر گر گیا اور یہ نیچے آ کر مر گیا۔ مرے ہوئے سانپ کو دیکھ کر کوکو اور گڑیا دونوں ڈر جاتے ہیں۔ مما، یہ تو ہمیں کھا ہی جاتا۔ دیکھا بچوں، میں نے کہا تھا نا، جو ہوتا ہے سب اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ ہاں مما، ہم سمجھ گئے ہیں، ایشور جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے۔ کبوتر بھیا، جب آپ نے اس سانپ کو دیکھ لیا تھا تو آپ نے شور کیوں نہیں مچایا؟
माफ करना चिड़िया बहन, तूफान ने इतना शोर मचा रखा था कि अगर मैं चलाता भी तो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचती। सच तो ये है कि उस सांप को देखकर मेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी, मेरा तो दिमाग ही बंद हो गया था। चलो आप मेरे साथ मेरे घर चलें, जब तक आपका घर नहीं बन जाता आप मेरे साथ ही रहना। फिर कबूतर चिड़िया के परिवार को अपने घर ले जाता है। फिर 2-3 दिनों में चिड़िया और उसका पति अपने लिए एक बहुत सुंदर और बड़ा घर बना लेते हैं। मम्मा, ये घर तो पहले घर से भी ज्यादा प्यारा है और ज्यादा मजबूत भी। देखा ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। फिर वो सारा परिवार खुशी खुशी अपने नए घर में रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए और ईश्वर हमेशा हमारे साथ होता है। पक्षीपुर नाम के एक जंगल में सभी पक्षी एक दूसरे के दोस्त थे। वो सब मिलजुल कर रहते थे और अच्छे बुरे समय में एक दूसरे की मदद करते थे। कबूतर और मिठू चिड़िया के पास आते हैं। चिड़िया, बहुत दिन बीत गए, हम कहीं भी घूमने नहीं गए, क्यों ना आज झरने पर सैर करने जाएं? हम वहाँ झरने के ठंडे ठंडे पानी में नहाएंगे, बहुत मजा आएगा। तो फिर आप कौवे और कौवी को भी जाकर बता दें, मैं खिचड़ी बना लेती हूँ, हम सब वहाँ बैठकर खिचड़ी खाएंगे। ऐसे मिट्ठू और कबूतर कौवों की तरफ चले जाते हैं और चिड़िया खिचड़ी बनाना शुरू करती है। फिर थोड़ी ही देर में सब पक्षी तैयार हो जाते हैं। चिड़िया भी अपनी खिचड़ी वाली देगची लेकर आ जाती है और वो सब झरने की तरफ अपना सफर शुरू करते हैं। चिड़िया, इस देगची में क्या है? ये मैं आपको झरने पर जाकर ही बताऊंगी। पता चल गया, मुझे पता चल गया, इसमें जरूर कोई खाने वाली चीज होगी। मिठू तो सबसे आगे आगे था। वो सब बहुत खुश थे। थोड़ी ही देर में वो सब झरने पर पहुंच जाते हैं। झरने का पानी बहुत ठंडा था। चिड़िया खिचड़ी वाली देगची एक पेड़ के नीचे रख देती है और झरने में जाकर नहाने लगती है। मिठू, तोता और कबूतर एक दूसरे पर पानी गिरा गिरा कर खेल रहे थे। मिठू भैया, आहिस्ता आहिस्ता, कहीं चोट न लगवा लेना। चिड़िया, मैं तो पानी में तैर भी सकता हूँ। ऐसे मिठू चिड़िया को पानी में तैर कर दिखाता है। गोरी कौवी आहिस्ता से कालू के कान में कहती है, कालू, चलो देखें चिड़िया के बर्तन में क्या है, बहुत खुशबू आ रही है। आहिस्ता से गोरी और कालू पेड़ के पास जाकर चिड़िया की देगची से खिचड़ी खाना शुरू कर देते हैं। अचानक तोते की नजर उन पर जाती है। चोर चोर, वो देखो, कौवे खिचड़ी खा गए। वो सब भी वहाँ आ जाते हैं। गोरी, ये मैं खाने के लिए ही तो लाई हूँ, सब मिलकर खाएंगे, ऐसे चोरी ना किया करो। मैं तो चेक कर रही थी कि खिचड़ी स्वादिष्ट भी है या ऐसे ही है। फिर वो सब मिलकर खिचड़ी खाते हैं। गर्मियों के मौसम का तो कुछ पता नहीं होता कि कब बदल जाए। ऐसा ही होता है, आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और थोड़ी ही देर में वो काली घटाएं बरसात शुरू करती हैं। बारिश बहुत तेज है और हवा भी। चलो हम कोई सुरक्षित जगह ढूंढते हैं। वो सामने पुरानी गुफा है, हम सब उस गुफा में चले जाते हैं। सबको कौवे की बात अच्छी लगती है और वो सब उस पुरानी गुफा में चले जाते हैं। जहाँ हम सुरक्षित हैं और फिर जैसे ही बारिश रुकेगी हम अपने अपने घरों को चले जाएंगे। वो सब बैठकर बातें करने लगते हैं और फिर अचानक एक आवाज आती है और एक पत्थर बारिश के पानी से सरकता हुआ गुफा के मुंह पर आ गिरता है और गुफा का मुंह पूरी तरह बंद हो जाता है। ये क्या हुआ दोस्तों? हम सब यहाँ फंस गए हैं, अब हम बाहर कैसे जाएंगे? हम तो यहाँ सैर करने आए थे, क्या पता था कि मुसीबत में फंस जाएंगे।
जब मैं छोटा था तो मेरे दादाजी एक कहानी सुनाया करते थे कि बहुत सालों पहले कुछ यात्री थे, वो ऐसी ही गुफा में फंस गए थे। फिर उन सब ने अपनी अपनी नेकियां याद की थी और वो पत्थर गार के मुंह से हट गया था। आप सब भी अपनी अपनी नेकियां याद करो, हो सकता है हमारी नेकियां सुनकर ये पत्थर भी हट जाए और गुफा का मुंह खुल जाए। फिर चिड़िया कहती है, एक बार मैं भोजन लेकर आ रही थी कि रास्ते में एक भूखी फाखा थी। मैंने अपना भोजन उस फाखा को दे दिया और खुद भूखी ही सो गई। चिड़िया ने ये बात की ही थी कि वो पत्थर थोड़ा सा हट जाता है। सब बहुत खुश होते हैं। फिर तोता कहता है, एक बार मैंने चील से एक छोटे बच्चे की जान बचाई थी। मैंने अपनी जान को खतरे में डालकर चील का मुकाबला किया। वो पत्थर थोड़ा सा और सिरकता है, मगर अभी इतनी जगह ना थी कि वो बाहर निकल सकें। ऐसे वो सब अपनी अपनी नेकी सुनाते हैं और फिर बारी आ रही है कौवों की। उन्होंने तो कोई नेकी की ही ना थी। वो बहुत देर तक सोचते हैं और फिर कौवा कहता है, दोस्तों, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी नेकी ये है कि मैंने गोरी कौवे से शादी की, क्योंकि ये हर समय मुझसे लड़ती रहती है और मैं फिर भी इसके साथ गुजारा करता हूँ। ये सुनकर सब हंसने लग जाते हैं और वो पत्थर पूरी तरह हट जाता है। ऐसे सब पक्षी खुशी खुशी अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं।